हाँ जी, good morning to all of you. Today we are discussing chapter 5th of 11th class, exercise 5.1, question number 11th. There is a find the multiplicative inverse of each of the complex number given in the exercise 11 to 11 13 तक. There is a 4 minus 3 iota. Therefore, what will be the multiplicative inverse? There is a 1 by 4 minus 3 iota. So we have to find the complex one number. Therefore a plus iota b की फॉर्म हमें जो है हमें चेंज करना है इसको. Now we have to rationalize. We will multiply by 4 plus 3 iota and divide by 4 plus 3 iota. Therefore there is a 4 plus 3 iota divided by a plus b and a minus b. There is a formula of a plus b and a minus b is equal to, there is a square minus b square. So there is a square minus b square. After that there is a 16 minus 3 का square, there is a 9 iota square. 4 plus 3 iota divided by 16 minus 9 into minus 1. Because minus 1 is equal to iota square. So 4 plus 3 iota divided by 16 plus 9 is equal to 4 plus 3 iota divided by 25. So the answer is 4 by 25 plus iota 3 by 25. There is a a and b. This is called a complex number. Similarly, 12th and 13th question are there. In 14th question, you can also see the statements भी आप देख लें. There is a statements. You can also take a screenshot. So 12th and 13th question do with yourself. Now we are discussing question number 14th. In question number 14th, there is a 3 plus iota root 5 and 3 minus iota root 5 divided by root 3 plus root 2 iota minus root 3 minus iota root 2. So firstly there is a plus b and a minus b. Therefore there is a square minus b square divided by, when bracket will be open, there is root 3 से root 3 cancel out. 3 का स्क्वायर 9 iota square minus 1, therefore plus 1 5 divided by 2 root 2 iota. It will be equal to 14 by 2 root 2 iota, rationalized by root 2 iota and divided also by root 2 iota. Multiply and divide, this will be called rationalized. There is a 14 root 2 iota divided by root 2 into root 2, 2 2s are 4 iota square. Also you can deduct, there is a 2 7 ja 14. So now you can write, there is a 7 root 2 iota divided by 2 iota square will be minus 1. Therefore minus 7 by 2 root 2 iota. A 0 and b is minus 7 by 2 root 2. This is the required solution. Now we are discussing 5.2. In exercise 5, 5th में, firstly you have to know there is a trigonometric table. आपको सबसे पहले आनी चाहिए. उसके बाद complex number और polar form, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने क्लास 10th में जो है कर चुके हैं. साइन कोस टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड. देयर इज अ 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90.
साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब टेबल आपको आनी चाहिए. दैट वी आर डिस्कसिंग इन द अर्लियर सेक्शन इन 10th क्लास 8th चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे. सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग द क्वाड्रेंट्स, कि यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ 0 to 90 ही क्वाड्रेंट नहीं है, उसके बाद भी है. देयर इज अ 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 देयर इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 to 360 देयर इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ये लॉ है. देयर इज अ ट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें जो है आफ्टर यानी कि ए से जो हमारा ट्रिक है वो है ऑल पॉजिटिव, एस से जो ट्रिक है वो है साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव. आफ्टर स्कूल टू टी से जो है टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव. सी से जो है कोस है तो कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे. यानी कि आप देखें तो 6 रेशोज हैं. 6 रेशोज में साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, पंडित बद्री प्रसाद अरबोले वाले ट्रिग्नोमेट्री भी आपको यूज रहेगी उसमें टेबल में. तो इन 6 की 6 रेशो में से कोई भी एक रेशो किन्हीं 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव हैं, उसके अलावा कोई एक और क्वाड्रेंट है जैसा कि साइन थीटा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कोसिकेंट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है. साइन और कोसिकेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी कि 0 to 180 दे आर पॉजिटिव. फिर कोस जो है, कोस और सीकेंट फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव है, यानी कि 90 to -90 दे आर पॉजिटिव. ठीक है. आफ्टर दैट जो है टेंजेंट 0 to 90 और 180 to 270, ये जो है इन दोनों क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है. तो सभी रेशो जो है किन्हीं 2 क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव है, अदरवाइज 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है जी. तो अब बात आती है कि इसमें और क्या होगा. जैसे अगर हमें जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, देयरफॉर वी विल राइट द ओनली एंगल, हमें डायरेक्ट थीटा लिख देना है. अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो माइनस थीटा वी विल राइट. If we are going the second quadrant में then there is a pi minus theta. If we are going in the third quadrant therefore minus pi minus theta we will write. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे sin थीटा 1/√2 एंड cos थीटा also 1/√2 है. therefore ये जो है थीटा जो है वो 45 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि pi/4. हम जो है 180 डिग्री को पाई राइट करते हैं, देयरफॉर 90 को pi/2 एंड 360 को 2 पाई हम राइट करेंगे. इसका हाफ 90, इसका ट्वाइस 360. ठीक है. इसी तरह से 60 डिग्री को pi/3, 45 को pi/4, 180/4, 430 को pi/6 हम जो है राइट करते हैं जी. इसी तरह से 270 डिग्री को क्या राइट करेंगे, 270 डिग्री को देयर इज अ 3 pi/2 राइट करेंगे. 18 3 is 54/2, 270 देयर इज अ 2 पाई, देयर इज अ पाई, ये pi/2 हो गया बेटा जी. तो इसी के साथ जो है हम लोग कुछ और बेसिक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं. इन 5.2 में देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं. इसमें जो है हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और हमारे पास फॉर्म है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा. ठीक है जी. तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जो है मैथ में से देख लें. फर्स्टली स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका. फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, एंड सेकंड क्वेश्चन में जो है हमें पोलर फॉर्म भी निकालने हैं, यानी सेकंड पार्ट में 3rd to 8th क्वेश्चन में. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन there is a z is equal to -1 minus iota √3. also z is equal to r cos theta plus iota r sin theta. therefore
अगर कंपेयर करें तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -√3. If we are adding and squaring कर दें both side, then there is a r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर आ जाएगा जी. So there is a r square common cos square theta plus sin square theta is equal to there is a 1 plus 3. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1 होता है. There is a 4, r is equal to √4, then r is equal to plus -2. r will be positive, therefore negative will be neglect. जो मॉड्यूल होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए जो है यहाँ पर -2 विल नेग्लेक्ट. सो अगर r cos थीटा जो है वो -1 था तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 होगा एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. सिमिलरली r sin थीटा इज इक्वल टू -√3, देयरफॉर 2 sin theta is equal to -√3 and sin theta is equal to -√3/2. When we check in the table, तो टेबल में हमने देखा कि cos 1/2 और sin √3/2, sin √3/2 and cos 1/2 will be on the 60 degree, π/3 पर होंगे ये. बट इन विच क्वाड्रेंट? अब ध्यान से देखिए कि cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है. cos आल्सो नेगेटिव, sin भी नेगेटिव. अब ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव थे तो फर्स्ट में तो हो नहीं सकते. सेकंड में sin पॉजिटिव है तो सेकंड में हो नहीं सकते. फोर्थ में cos पॉजिटिव है, फोर्थ में हो नहीं सकते. थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर sin भी और cos भी दोनों ही पॉजिटिव पाए जाते हैं. और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए -π-θ वी हैव टू डू. देयरफॉर अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल जो है वो हमारे पास कितना निकल चुका है, वो हमारे पास निकल चुका है π/3. π/3 आने के बाद अब थीटा निकलता कैसे है? थीटा निकलता है जी -π- जो भी एंगल होगा π/3 से, वी कैन फाइंड इट. तो माइनस देर विल बी एल्सियम 3π - π, देर विल बी अ -2π/3. तो ये जो है आपने लिखना भी है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है जी, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा जो आ गया -π - थीटा यहाँ पर करने के बाद देयर इज अ 2π/3. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या निकालना था? हमें मॉड्यूल निकालना था जो निकल गया. हमें जो है इसमें और क्या निकालना था? हमें जो है आर्गुमेंट निकालना था, दैट आल्सो फाइंड आउट. तो यही आंसर है. बाय चांस पोलर फॉर्म निकालनी होती तो वो हम निकाल देते. उसमें क्या करना पड़ता है, दिस इज द पोलर फॉर्म, r की जगह r, एंगल की जगह एंगल पुट कर देते, देन वी कैन फाइंड द पोलर फॉर्म. नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है. देयर इज z इज इक्वल टू 1 - iota, देयरफॉर r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू -1. So squaring and adding both sides, therefore r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to 1 का स्क्वायर 1 एंड -1 का स्क्वायर. लिखना है आपको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन. r square will be common, there is a cos square theta plus sin square theta, there is a 1 plus 1, there is a 2. cos square plus sin square equal to 1, r square is equal to 2, r is equal to √2 plus minus, but r will be positive, therefore negative will neglect. r cos theta is equal to 1, therefore √2 cos theta is equal to 1
and cos theta is equal to 1 by root 2. Similarly, r sin theta is equal to minus 1, root 2 sin theta is equal to minus 1, sin theta is equal to minus 1 by root 2. Now we have to check out कि 1 बाय रूट 2 वैल्यू कब होती है। तो आपने चेक की टेबल में 45 डिग्री पर जो है सेम वैल्यूज है। अब ये चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव कब होता है। कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, मगर फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट इज दैट क्वाड्रेंट जिसके अंदर कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कोस पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव पाया जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए माइनस थीटा करते हैं, देयरफॉर थीटा विल बी माइनस पाई बाय 4, थीटा विल बी माइनस पाई बाय 4। इसके बाद मॉड्यूल आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, देयरफॉर देयर इज आर इज इक्वल टू रूट 2 कोस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा आर रूट 2 साइन माइनस पाई बाय 4 इज द पोलर फॉर्म, देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप सो आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट 5.3 है, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।